మామూలుగా కూలర్లు ఈ రోజులు అందరి ఇళ్ళలు ఉన్నాయి. పడుకున్న రాత్రి 1 గంట సమయం అయింది. బాబా గారు ఎప్పుడు విఠలేశ్వరుని, భక్త తుకారాం మహారాజ్ని, తురోజీ మహారాజ్ని వాళ్ళ సంభాషణలన్నీ ప్రతిరోజు శ్రమ ఆపకుండా చెప్తూనే ఉంటాడు. ఎల్లకాలం ఎప్పుడు ఎండ అనగా, వర్షం అనగా, చలనగా, ఏదనగా ఎన్నో అందరు భక్తులకు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తూనే ఉంటారు, దర్శనం ఇస్తూనే ఉంటారు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. వారికి అలసట అనేది ఉండనే ఉండదు. అంటే నేను దాదాపు 100-200 సార్లు పోయినవచ్చు. నాకు తాగుడు కూడా అలవాటు ఉండే. ఆ తాగుడు అంటే బాబా గారి అంటుండే, ఏ పీతే రేతా, అత్తే రేతా, చెల్తే రేతా అని. కానీ తర్వాత నేను ఒకరోజు ఏమైందంటే, బెడ్లు బాగున్నాయి, పడుకున్నా. అయ్యా ఇట్లా తినలేదు ఆ రోజు. పడుకున్న తర్వాత రాత్రి ఏమైందంటే, కలలో విఠలేశ్వరుడు మందిరంకి వెళ్ళినా. విఠలేశ్వర మందిరం అంటే మందిరం విఠలేశ్వరుడు సాక్షాత్ విఠలేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. అక్కడ మంచి ఇలాంటి వాతావరణం ఉన్నది, బాబా గారు కూర్చున్నటువంటి వాతావరణం ఉన్నది, చల్లని శీతలమైన వాతావరణం ఉన్నది. పడుకుని 2 పాదాలు పట్టుకున్నా. పాదాలు పట్టుకున్న తర్వాత ఏమన్నాడంటే, అప్పటి పాదాలు పట్టుకున్నా ఎవరో వచ్చిండ్రు, నన్ను నన్ను అంటున్నారు. అయినా నేను ఆ పాదాలు ఇడుస్తలేను. చల్లగా ఏదో సుఖంగా హాయిగా అంత ప్రశాంతమైన జీవితం నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదా. 1 గంటల రాత్రి సమయానికి వెంటనే మరి విఠలేశ్వరుడు బాబా గారు ఆ రూపంలో వచ్చి లేచి మాట్లాడిండు. అంటే ఆ రూపము అందరి నుంచి, ఆ విగ్రహం నుంచి రూపం వెళ్ళి మాట్లాడిండు. నాకు మాట్లాడి ఏమన్నాడు, నాయనా నువ్వు అంత సుఖంగా ఉంటా బాపు, కానీ ఒక విషయం అన్నాడు, నువ్వు తాగి మందిరంలోకి రాకు. అలవాటు ఉన్నది, మా అందరికీ అలవాటు ఉంటుంది తాగుడు. అంటే మనము ఏదో ఉన్నది. ఇప్పుడు మానేసినాం అందరం. బాబా గారు ఉట్నూరు లోపల ఇప్పుడు అందరూ మానేసిండు. అంటే తాగుడు ఉన్నది, ఏదో వ్యసనం, అది ఏదో టెన్షనో ఏదో ఎందుకో తాగుతూ ఉంటారు. అదే అందరిలోకి మళ్ళీ రుక్మాబాయి కదా, ఆ రుక్మాబాయి ఏం చేసిందంటే, మా భార్య సాక్షాత్కారాలు దేవత, ఆమె నాకు తప్ప ఎవరు లేరు. నా తల్లిదండ్రులతో నేను కొద్దిగా ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నా. తర్వాత నాకు ఇంకా మిగతా విషయాలు అవన్నీ కొద్దిగా కష్ట జీవితమే అనుభవించిన. అయినా నాకేం తగ్గలేదు. నేను ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిని, నాకు బాబా గారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. తర్వాత అదే ఇక అప్పుడు రుక్మిణీదేవి ఏమన్నది, మా భార్య పిలిచి, అమ్మా లేవు నీ భర్త బాగానే ఉంటాడని 2 సెల్ వాచ్లలో సెల్ ఉంటాయి చూడండి సార్, బంగారు సెల్లు, అసలు 2 వాచ్లు ఇచ్చింది, 2 సెల్లు ఇచ్చింది. సెల్లులు ఇచ్చేసి, ఇది అమ్మ ఉంచుకో, నువ్వు జాగ్రత్తగా, నీ భర్త తాళి ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటుంది, నీ తాళి ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటుంది అని. అప్పుడు ఆ రూపంలో పులాజీ బాబా గారు వచ్చి స్వయంగా, నేను ప్రతి అణువణువులో ఉన్నా, ప్రతి ఎక్కడంటే అక్కడ ఉన్నా, ఏ లండన్లో ఉన్నా, ప్రతి దాంట్లో నేనే ఉన్నా అని నేను చెప్పిండు. అప్పటి నుంచి నేను అదే రోజు నా బిడ్డ కాలు పడుతున్నాను. రాత్రి 1:30 రాత్రి సమయం 1 గంట, కరెక్ట్ 1:30 అవుతున్నది. నా భార్యని లేపిన, అందరినీ లేపిన. అయ్యో నాకు ఇట్లా కలబడ్డది, ఇదంతా ఏంది అది అంటే, బాబా గారు ఇందుకు ప్రశ్నమైంది అని చెప్పింది. మరి మీరందరూ సుఖంగా ఉండాలని ఆ బాబా ఆశీస్సులు పొంది మీరు
सुख जीवितम गड़पाలని నేను కోరుకుంటూ సెలవు जंगल में जाने की भाई किधर भी नहीं, भगवान अपने अंदर ही थे, ये बाबा के अंदर ही थे क्या? ये इधर भगवान नहीं, तो एक ही बात में इतना चक्रा था। ऐसा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में ऐसा छो आप भी का भी पूरा इधर अकेले के लिए यानी बाबा में भगवान है क्या? ये ऐसा अभी ध्यान के बारे में होते ना, ध्यान ध्यान सही है, शंका होने की जरूरी है, क्योंकि अनेक पंथ निकले, दत्तपंथी, शिवपंथी, वैष्णव, ये सबको मालूम है। जिसके दिल में आया उधर ही तापुन गए। एक आदमी मैं हूँ, अब मेरे पीछे सभी लोग आ रहे हैं, वैसा क्या होगा ये? अनेक पंथ, अनेक धर्म, अनेक जिसके मत से रास्ते गिरा दिए, अरे मैं शिष्य बना लिया, और मेरे पीछे पूरे है, कोई विष्णु का भाग लिए, कोई कृष्ण का भाग, कोई राम का भाग लिए, कोई ऐसा होते होते क्या होगा? सही क्या है? चुप है। तो अपने को कृष्ण क्या उपदेश करा दूँ, नहीं क्या? राम उत्तिष्ठ, उसका स्वाद होगा। दशरथ ने देखा कि राम क्यों दिल गिरा है, क्यों नाराम है, तो गुरु था, उसको बोला कि अरे राम के क्या समझा है, पूछो, कुछ भी नहीं बोला हूँ। ये क्या है, ये राज्य क्या है, प्रपंच क्या है, माया क्या है, अब कुछ पढ़ा था उन्होंने। अब ये रूढ़ी अब तीर्थवर्त दशरथ क्या बोला? अरे बोले पूरे तीर्थ करके लो, बोले राम पूरा भारत घुमा 6 महीने, उसका समाधान नहीं होगा। योग अवस्थी से किताब है, उसमें पढ़ के देखो, तरुण बच्चे सब तो क्या होगा? आया समाधान नहीं होगा, और घर में वैसा क्या? जब बच्चे को बुला लिया, कोई ऋषि बुलाया, क्या मित्र आया, तो बोले ये राम की क्यों स्थिति हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा, खाना नहीं पीना नहीं कर रहा है, क्या बात है? तो ऐसे ऋषि मुनि बैठे, वशिष्ठ ने 2 प्रश्न करा, यानी प्रपंच क्या, राज्य क्या, ये पूरा उसको मालूम था। बात निकाला कट करना, बात निकाला राम ने, वो प्रश्न सब वशिष्ठ का बंद करना। जब उन्हें परेशान हो गया कि ये 2 महात्मा है, ये राम जो है ये मामूली साधारण बच्चा नहीं, कि रघुकुल में ये कुछ ना कुछ महान ऋषि बनने वाला है। जब क्या करा, अपनी अभी बोली सो बात, आत्मशक्ति यानी कुंडली शक्ति यानी कि मंत्र देना, तंत्र देना, कान फूकना, पूजा करके लगाना, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम, ये पूरा बंद हो गया। उसका दुकान ही बंद करा राम ने। तो इन्होंने समझ लिया कि अब ये आत्मशक्ति यानी संभावित शक्ति यानी गुरु कृपा जो बोलते हैं अपन, तूने क्या अपना योग माया से ऐसा करा, अपनी समाधि लगा दिया, ऐसा देखा। अब जब राम को क्या होगा, एकदम ऐसा देखते 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 आग बंद हो गए, ऐसा बेभान होगा, यानी समाधि लग गई। आधा ताश क्या बैठने का, बैठा, आंखों से पानी टपका, ऐसा आंख शरीर कांप रहा उसका, और ऋषि मुनि बैठ के थे। तो बस आँख खोल कर देखा, जो मुझे अंदर अनुभव हो गया समाधि में कि आत्मदर्शन होगा कि मेरा मैं हूँ, इसको बोलते गुरु कृपा। तो क्या होगा ऐसा देखा, तो बोला हम ब्रह्म, बोला
मैं एक भगवान नहीं हूँ, ये जितना दिख रहा वही मेरा भगवान का स्वरूप है। हम ब्रह्मा, हम यानी छोटा बड़ा नहीं, कोई झाड़ पहाड़ कुत्ता बिल्ली पापी कंडाल में एक आत्मा ही दिख रहा, आत्मस्वरूप। तो जब ऋषि मुनि थे कुछ कि उसको एक ऐसा दिए, वरदान दिए, जैसा दे दे, उसको एक बड़ेपना दिए कि वशिष्ठ जी ने आज परंपरा के कहे कि गुरु परंपरा थी और हमारे सामने प्रकट करके बता दिया। योग वशिष्ठ किताब है, उसके पढ़ के देखो एक बात, ये अपना जो ये चल रहा काम ये है, आज का नहीं, आदि अनादि सनातन है तुम्हारा राम का ये है। और एक राम के बारे में बोलता मैं कि राम भी वशिष्ठ की पूजा करता था, गुरु महात्मा की। राम भी जाके कौन से मंदिर में बेल फूल नहीं डाला, याद रखो। वशिष्ठ बैठ के है, राम ऐसा हाथ जोड़ के उसके सामने है। तो आप ये देखो, ये ऐसा होगा। और पूरा सीता लेके गए रावण, जब पूरा युद्ध करा, वहां से पूरा जो का सैनिक वापस आए, सीता लाया, और पूरा क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जिसके सैनिक थे बड़े बड़े लोग का, उसको क्या दान देने का दिया, वस्त्र दान, कुछ क्या जैसे काम है वैसा वैसा दिया और भेज दिया इधर उधर सैनिक। हनुमान को कुछ भी नहीं दिया था, ये सबको मालूम है। रामेजन में देखो कुछ भी नहीं दिया। सीता नाराज हो गई कि इतना मेरे पिता के समान इन्होंने मेरा काम करा और इसको कुछ भी नहीं दिया। राम ऐसा बैठ के था। अब गुरु माले के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में आप ख्याल करो, देखो राम ऐसा बैठ के था, क्या बोले, इतना राम अनाड़ी है, बोले इतना मेरा पिता के समान इन्हों काम करा, मेरे को ला लिया, हाँ कितना कष्ट करा, इसको कुछ भी नहीं दिया। तो ये सीता को मालूम नहीं था, सीते के सिवा राम ने किसको आलिंगन नहीं दिया था, यानी गले में गला नहीं मिलाया था। तो जब पहला राम के हनुमान की पहचान हो गई, जब उन्होंने आलिंगन दिया था, जब भी उसको आशीर्वाद दिया था हनुमान को। ये भी इसके क्या बोलते हैं, आलिंगन बोले तो गले में गला डाला। अभी भी फोटो है, देखो वो जब का अभी भी फोटो है, वो देख सकते तुम। तो राम जब घबर गया कि अब मेरा भंडा फूटता कि मैं जो भगवान हूँ। अब सीता बोलती कि मेरा रघुपति राघव भगवान है, तो अब मेरा भंडा फूटा, हनुमान मेरा भंडा फूटता। क्यों कि ये अब कुछ तो भी देती, तो ये नहीं क्या वही देखते देखते क्या करी, मैं देता, बोले ये राम का हार है, बोले ये एक निशानी में देता, बोले तेरे को। उन्हें हाथ में ले लिया, एक एक मनी फोड़ के फेंक दे रहा। अरे अरे बोले हनुमान तो सही पागल से क्या, बोले क्या हो गया माँ, बोले अरे बोले राम का हार, वही बोला मैं मंदिर में राम है क्या बोल के देख रहा, बोले। तो जब राम क्या करा, ऐसा बैठा, तो बोले तेरे को अभिमान है, मेरा एक ही भगवान पति मेरा राम है बोल के तेरे को अभिमान है। बोला जब राम भी था, सीता सामने थे, भाष्य जब का है, उन्होंने फेंक दिया। ये देखो बोला तू भी, यानी आत्मा राम, शांति ये सीता, याद रखो। तो आप भी, मैं वो हनुमान सीते को राम और सीता बताया था, वो भी मैं भी आत्मा के बारे में बोध कर रहा। बोलो कहाँ है राम, कहाँ भक्ति है, कहाँ मूर्ति पूजा है, बोलो। हनुमान सीता को राम कुछ बता दिया कि देखो मेरे में भी है, तेरे राम में नहीं भगवान आत्मा। देखो आध्यात्मिक ज्ञान में अब वही मेरा मार्ग है, आपका फुलाजी बाबा का नहीं। समाधि के बारे में आया और ध्यान के बारे में शंकर हमेशा जगल में बैठता था, ये सबको मालूम है। ये आज का है क्या, ये फुलाजी बाबा का है क्या? नहीं, मैं भी अपने जैसा आज का हूँ, एक कलयुग मैं भी हूँ,
लेकिन ज्ञान आज का नहीं। ये बात तुम इधर उधर देखो, पीछे जाओ। पहले तो आप मैं बोला बीच में का छोड़ देंगे, पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए शंकर के जमाने में यही ध्यान था। और वो चलते 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 काहे नहीं, बहुत बुद्ध, गौतम बुद्ध, उन्होंने भी जंगल में जाके ध्यान करा। ऐसे सभी ध्यान करे सो है। लेकिन ये बीच में डूब गया था। तो मुझे मिला, ये बताना मेरा काम है। कुछ भी नहीं, आप बोले सो इसको कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई की गरज है। सत्य चलो, सत्य बोलो, पर धन के ऊपर इच्छा मत करो। है अर्जुन को कृष्ण बोला, अर्जुन बोला कृष्ण को, अरे तुम सब में है, सब में है। ये गरीब क्यों, लूला, एक अंधा क्यों, ऐसा बोले तुम सब में है ना। गीता में लिख के मैं सौम्य हूँ अर्जुना, मेरे शो पता हिस्सा नहीं गीते में है? तो बोला उन्होंने, मैं पिंडी देखूं क्या ब्रह्मंडी देखूं? अरे मराठी में पिंड शरीर को बोलते, ब्रह्मंड इसको बोलते। तो है, ये सही है, लेकिन पिंड में देखो क्या ब्रह्मांड में देखो? तो बोला कि ये यहाँ बोला मैं मोर की आंख है ना बोलते, पर पंख के ऊपर एक आंख रहती, देखो मोर के पंख का, वैसा मेरा स्वरूप है। बोला मोर के आंख के जैसा तो ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है। बोला अर्जुन, जब तक तू मेरे पास कोई भी नहीं आता तब तक मैं उसका रक्षा नहीं करता। बोला तो ये फिर कैसा करूं मैं, वहां तक कैसा हूं मैं? जगह एकांत देखो। बोला जगह एकांत देखो, वहां पहले आसन बनाओ अर्जुना। ऐसा यही ध्यान के बारे में, आसन बनाओ, बाद प्राणायाम, श्वास उश्वास लेना, एक करना, एक खींचना। व्यान, व्यान बोले तो एक आत्मनाड़ है, कुंडली शक्ति बोलते, कोई पराशक्ति बोले, आत्मशक्ति बोले, संभवी शक्ति बोले आत्मा को, अनेक नाम है। कोई नागनाड़ भी बोले, देखो ऐसे अनेक भाषा आत्मा को। तो ऊपर ले लो, अरे हाँ है बोले, जहाँ तेरा मेरा दर्शन हो जाएगा। बोला ये मेरा मार्ग है, आज का नहीं। आप देखो सभी ऐसे बड़े बड़े राम कृष्ण, वो ऐसे गुरु का संवाद शिष्य गुरु का होते आया। अब बीच में क्या होगा, अब देखो बीच में अपन ये खड्डे में फंस गए। गुरु करना, गुरु क्या, तुम्हारा हमारा क्या दोष है? अब तुम मेरे पास आए कि बाबा हमको रास्ता बताता, आशीर्वाद देता, तुम इतने लोग मेरे पास आते कि कुछ ना कुछ हमको मालूम होता, हमारा उद्धार होता, यानी आशीर्वाद भी मिलता बोल के। तो मैं क्या, तुम क्या कर रहे बाबा, हमको ऐसा है वैसा है, ये चलते रहता है प्रपंच। कोई परमात्मा के बारे में पूछ रहे, हाँ गुरु करा, ये दक्षिणा होना, फलाना, कुछ तो कुछ ही होना, यह है तुम देते कि हमारा भला होता बोल के। गुरु है, परंपरा है, गुरु करना ही लगता। तुम यहाँ क्या रे, मैं जो क्या करने का करा, लेकिन क्या धोखा दे, मैं तुमको बोलता, तुम किसको बोलना नहीं? बोलो, मैं तुमको बताता, लेकिन दूसरे को तुम बताना नहीं। अरे एक बार 3 बार तुम बालाजी जाओ, नहीं तो पंढरपुर जाओ, ग्रंथ में लिख के है कि गुरु के पास जाओ। हम गुरु के पास जाओ, गुरु क्या उधर बता रहा, धोखा होगा कि नहीं? ऐसा खड्डा गिर गया था। अपनी फसों धर्म की हानि क्या होगी है? आज और बोलता मैं, भगवान को कोई बना नहीं सकता। इतना बड़ा अमेरिका बोलते हैं ना, विश्व में अमेरिका बड़ा है, उन्होंने देखिए भगवान बना नहीं सकता। मेरा ईश्वर है, वो निराकार है। भगवान कौन बना सकता? कौन सोनार बनाता, कौन बेलदार बनाता, कौन सा कारागिर बनाता भगवान को? वो कौन से धातु है भगवान बोलने के, ये हमको पता नहीं। भगवान बोलने का महापंच होता है, 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये 5 तत्व है। इसको ऋषि मुनि भारत के सही संस्कृति, भगवान यहाँ राम हो, कृष्ण हो, कुछ भी बोलो, राम रहीम जितने कोई ऋषि है नाम, कुछ भी बोलो, लेकिन एक ही था।
बात तत्व के सिवा कुछ भी हिलता नहीं, कोई पुरुष नहीं सब में हो, अब भी है। आप एक हवा बंद होने दो, 5 मिनट हवा बंद हो दो इसमें, नहीं तो ये 2 मिनट में जय गोपाल। राम के भक्त, फुलाजी बाबा के भक्त बुलाने का काम ही नहीं, एक ही बार सो जाते। ये है भगवान। पहले ऋषि मुनि तो इसको पहचानो, ये पहचानने का इंसान को मौका मिला है अपने को। अब वेस्ट टाइम मत खर्च करो, आत्मा पहचाना का, अपना स्वरूप आप देख सकते हैं। ये मुझे अनुभव आएगा कि पाठ तो कैसे देखना वो भी बोलता है। मैं बोलता कि तुम कैसे समझे, लिख क्या है उसमें, जितना लिख के पाठ तो है, ये मैं पढ़ा देखा, लेकिन अनुभव कैसा है तो मैं ध्यान को बैठा था, अभी सही बोलता हूँ, ये मालूम नहीं ऐसा बैठा था तो कभी कुछ भी नहीं, मैं अकेला और सिर्फ पृथ्वी दिखना, भाष होना से साक्षात्कार बोलते उसको, पूरा सुनने दिखना है, कुछ नहीं दिखना, झाड़ पहाड़ी सृष्टि और मैं अकेला उसको। ऐसा मेरे को मालूम होना कि ये पृथ्वी तत्व होगा, लिख के तो है गीता में, ये पृथ्वी तत्व होगा। तो कभी बैठा था ऐसा पूरा पानी, और मैं पानी के ऊपर बैठा देता, जब ऐसा मालूम होता था कि जल तत्व जो बोलते, ये जल तत्व होगा। ये जितने आप जो पढ़े सो है याद रखो, और आगे भी किसको बोलने का है, देखने का तो हो सकता है साक्षात्कार। तो कभी कभी अग्नि दिखना, ज्वाला, जंगल छिलका जैसा दिखना, ये अग्नि तत्व होगा। तो कभी धुआं, पूरा धुआं है, धुआं सब, और ये वायु तत्व होगा। कभी बिजली, कभी पानी, कभी सूरज, कभी तारे। गीता के बात है ये, पढ़ना नहीं, पढ़ते नहीं, इसका अनुभव लिए सो है। और वैसा अगर महात्मा मिला तुम भी देख सकते, क्या बड़ी बात है। तो ये क्या शीट में है, कभी रवि, कभी चांद, कभी सूरज, कभी बिजली। तो ये अनुभव के बातें हैं। इतना एनर्जी का जो पांचों तत्व इसमें है, यहाँ भी है और बाहर भी है। कभी लाल वाला अंदर भी है, बाहर भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। इसका मतलब क्या, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा मैं समझा कि यहाँ है और वहाँ भी है। कौन है मेरे में जो है, तुम्हारे में है, कहाँ नहीं। अब कौन छोटा कौन बड़ा, बोलो आत्मा के बारे में। लूला कौन, अंधा कौन, ये आकार किसको नहीं होंगे, इसको टांग नहीं होंगी, लेकिन आत्मा कहाँ नहीं। उसको जात पात है, वो लूला है, वो अंधा है, वो बहरा है नहीं। तो मराठी में एक द्वारा है, पाँव नहीं लेकिन चलता, पाँव नहीं, लूला है लेकिन चलता, अंधा है लेकिन देखता, बहरा है लेकिन पूरा सुनता, मुक्का है लेकिन पूरी बात समझ लेता, मुंह नहीं लेकिन पूरा जितना रस है वो भी सुन लेता। कौन है, आत्मा। रूप, रस, गंध, स्वरूप, 4 बातें हैं। देखो कि ऐसा देखे तो अच्छा बुरा मालूम होता, ये रूप का गुण है। अच्छा बुरा देखने से मालूम होता है। ये नाक है, सुगंध, रस, ये अच्छा है बुरा है ये बोल देता है। ये है तभी है, स्पर्श से
अब ऐसा उंगली लगाए तो भी, एक किला की उंगली लगाया तो भी पूरा समझ लेता है। ये 4 गुण है इसमें, ये भी 4 प्राण हैं, यानी पूरे अपने शरीर को मालूम होता है, सुनने के बाद पूरा मालूम होता है, देखने के बाद पूरा शरीर को मालूम होता है, हाथ सफर से पूरा होता है। तो कैसे आणि अष्टांग भक्ति, अष्टांग कोई नवनिध भक्ति बोलते, नवनिध भक्ति, भक्ति नवनिध, गीते में भक्ति नवनिध। तो मैं एक पूछा, मेरे को मालूम नहीं ना, पहला कोई मालूम नहीं था। जब बाबा आते थे कि बाबा बोले भक्ति नवनिध क्या है, बोला नहीं, बोले पूजा पाठ मंत्र तंत्र तीर्थ वर्थ दान धर्म, ऐसे बोला। इसको बोलते नवनिधि भक्ति। ये तो सुनते सुनते क्या होगा, आखिर मुझे ज्ञान होगा। ये इंद्रिय के बारे में मैं बोला नहीं थी। तो अष्टांग, दिल, अपना दिल, चित, मोह, अहंकार, गर्व, अभिमान, इसको काबू ले लो, इसका यत्न बनो। इंद्रिय का क्षण विकार है, इसका यत्न बनो। आप देखो ये गीता में यज्ञ इधर रहे और हम काट कौन से यज्ञ करे, घी कुछ दाने, इसमें हमको चक्कर बैठा। गीता में देखो, है आँख के ऊपर तावा, कान के ऊपर तावा, जबान के ऊपर तावा, दिल के ऊपर तावा, वासना। ये करते करते क्या होता, वासना क्षय। जब सही क्या है, अपना आत्मा स्वरूप रहता, कृष्ण वही है, राम वही है, ब्रह्मा विष्णु वही है। विष्णु बोले तो आत्मा, विष्णु बोले तो आत्मा की पूजा, वही विष्णु पूजा आत्मा, ब्रह्मा आत्मा। देखो ब्रह्मदेव भी आत्मा कुछ बोले सो है, शेष आत्मा कुछ बोले सो है। आज तक कोई भी बाबा नहीं बोला। बोलो याद रखो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा, संत कोई भी हो, वैसा अगर है, ब्रह्मा हुई, विष्णु हुई, शेष हुई। इसका अर्थ कि महात्मा, और महात्मा को शरण जाना, और महात्मा काम है यही, मेरा मैं कौन हूँ, अपने को पहचानत नहीं। पहचानत करने के लिए मैं आत्मा अंदर है, भगवान अंदर है, क्या है, कैसा है, कहाँ देखना, वो मुझे भी कई दिन हो गया ऐसा। क्या है तुकाराम बाबा बोला, काय पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, तुझा देव तुझ्या पशी बरी जागा तू कलाशी। अरे मी तो हा विचार वे के शोधने, गोविंद माधव याद दे। अरे सगळे भजन बोलू, सब बोला, मैं भजन सुना बोला, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया, मैं चक्कर में बैठा क्या है। तो ये साक्षात्कार से ये मुझे मिल गया, आत्मा है, सही है, लेकिन 5 तत्व का शरीर बना सो है, और मंत्र फिंत्र का ओंकार स्वरूपा। आत्मा नहीं तो तुम गुरु शिष्य बनाता क्या, मंत्र अपन लेते क्या। आत्मा है तो सभी है, गुरु में भी है, शिष्य में भी है। लेने वाला कौन, देने वाला कौन है, पहला तो ऐसा है, उसकी पहचान करने का, उसका उपयोग करने का। खेती है, खेती बोलने से नहीं होता, उसको काम करना लगता है, खत डालना लगता है। वैसे आशा मनसा गर्व का अभिमान कपट कल्पना, इसको काबू में ले लो। जब सत्य रहता, शेष बोले तो ये सांप मंदिर में बिठा दिए, शेष बोले तो मुष्टा कुछ उरास हो, यानी शेष। अब ये कई जमाने के ऋषि मुनि ने खाना खा के लिख के रखे अपने लिए, इसको बोलते शेष। जो रहता है शिलक, वो महात्मा चले गए, राम गया, कृष्ण गया, सब गए, लेकिन उसके बाद ये बातें अपन निकल रही, इसको शेष बोलते।
वही मैं शेष खाया उसका, उष्टा शेष बोले तो बचा सो और उष्टा बोलो कुल, वो मैं खाया, मुझे मालूम होगा। अब वही भी पुराना जो है मैं ये तुमको दे रहा, मेरा कुछ भी नहीं। क्या फुलाजी बाबा लेके बैठे, सनातन ज्ञान आया स्व है, ये मैं तुमको दे रहा, अनुभव आया। तुकाराम बाबा बोला, जे जे आले अंगा ते ते लोका सांगा, अपन तरुणी दुधा तारावे अपन तर लेते न होने। इसका मतलब क्या है कि अपने को जो अनुभव है शास्त्रयुक्त, वो दूसरे को रास्ता बताना, यही धर्म है। अपन तरुणी दुधा तारावे, यानी मैं कौन से बात से मैं डूब गया था अंदर, मेरा अनुभव है। मैं कहाँ डूब गया था कि मैं इतना, लेकिन मैं क्या समझता, मेरे को सब समझता, काय का बाबा है, काय का देव है, मैं जो बोलता था। अरे खाना पीना मजा करना मरना ये मेरी बात है, लेकिन भगवान की तरफ से कौन महात्मा क्या करा, ऐसा होगा कि एकदम ऐसा था, एकदम गाड़ी उलट गई, खत्म, ऑटोमेटिक है। देखो इतना अनुभव है तो मालूम है कि कुछ भी नहीं। अब ये घट घट में भरा है भगवान, कन कन में भरा है, रग रग में भरा है, कबीरदास बोला। तो इसमें भी मैं सोच करा, रग रग में खून है। अब ये भगवान बाहर का आदत लगी थी, घर में 50 देव थे, खंडोबा, मरियाई, मरचोबा, भवानी, मसाई, मेरे घर में बाप दादे करते थे। फिर रग रग में कैसा है, बाप दादे वहां से करते आए, रग रग में कबीरदास कैसा बोला, भाई भजन बोलता था, भजन पहला, अभी सामान है मेरे पास। तो जब वो थोड़ा थोड़ा मालूम था कि रग रग में कैसा है, तो आप मालूम होगा। आप सबको बोलता, मैं बताता है कि नहीं। कबीर की बात जो है मैं सुना था, उसके डोंट आया था, अब भी मेरे ख्याल में आ गया। अब है ना, अपने निर्मल में एक आदमी अशक्त होता, अपन लेके जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता, 3 बॉटल होना इसको है, 2 बॉटल खून होना, नहीं तो ये बचता नहीं। कैसा भी करो वो लाते देता। अनुभव है कि नहीं, भगवान बोलो रग रग में एक जल तत्व है कि नहीं। जब मुझे मालूम होगा सही है, रग रग में है। अरे जल कम होगा तो मरता, ये बात सही है। हवा बंद हो तो मरता, पानी नहीं तो मरता, पृथ्वी नहीं तो खत्म। यहाँ अगर भूख लगी इसको, ये माते को ऐसा करती, इतना ताकत है। तो इसलिए कौन बनाने वाला नहीं, भगवान आपको तुम बनाए। अब ये फोटो है, एक मेरे ख्याल में है कि फिर सनातन, मैं निंदा नहीं करता कि ये आदि अनादि शंकर से मूर्ति कैसे बनाई थी। भगवान तो निराकार है, ये क्यों बनाए ऐसा, अनुभव के बातें हैं। मैं टिंगल नहीं करा, लेकिन सोचते सोचते यहाँ तक आया मैं, ये अनुभव के बातें। तो मूर्ति वो लोग कई जमाने से कुछ पंडित नहीं थे, कोई राजे नहीं थे, जब नहीं ये कुछ ना कुछ सही होगा मेरा मैं मेरे को करते करते आप वो ख्याल में आ गए। गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर, तान्हा जी, शिवाजी अपने भारत में, अब उसके फोटो है, रास्ते में बिठा रहे। सही है कि मूर्ति बिठाना भी सही है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि अंबेडकर के जैसे, बुद्ध के जैसे, यानी शाही बाबा के जैसे हमारे भारत में रत्न पैदा होना, नहीं तो मेरे खानदान भी ऐसा एक बाबा पैदा होना, इसके लिए मूर्ति बिठाए सो है। हम पूजा कर रहे, खाना पीना खुला, बाबा का दर्शन लिए, काम आया, कबलात करते, 1 महीना तो बनते, बस वो कबलात हो गई कि हम खुले भगवान से अलग पहले देखता, इष्ट में होगा। ये मूर्ति बिठाना सही है कि देखने के लिए कि हमारे भारत में ऐसे एक महान पुरुष हो गए
इंदिरा गांधी के जैसे सुना कि भाई लोग ऐसे राज्य करे, झांसी की रानी राज्य करे, शिवाजी के हमारे पुतले, हमारे बच्चे ऐसा होना, हमारे भारत के रक्षण के लिए महात्मा की मूर्ति अपने भारत में, अपने गांव में, अपने खानदान में ऐसे व्यक्ति पैदा होना बोल के इसका मतलब ये है। देखो, पूजा करने का नहीं। और होता अनजानी तब करी थी, मालूम है क्या? ऐसा बच्चा ले एक ही थे शिवाजी के बारे में, उसकी माँ एक शिव मंदिर था ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश तलाश कर रहे थे मराठी लोग के ऊपर। जब उन्होंने जाके एक मंदिर में बैठी, शिव मंदिर में, कि ऐसा बच्चा दे कि दुष्टों का संहार करने का है। शिवाजी के बारे में, शिवाजी की माँ नहीं, इसको यहाँ भी पसंद कर दो, देना है तो ऐसा दे। उसके संकल्प से शिवाजी बाबा, संकल्प से माता के ये हनुमान करे क्या वैसा तप करो, मांगो, होता। मेरा विश्वास है। शुद्ध विजेता पोटे खरे रसाळ गोरे गो मोटे, आणि विठ्ठल रुक्माई 4 बच्चे कैसे हो गए उसके? बोलो, तप में सामर्थ्य है। तब बोले तो क्या सत्य, कोई बेल फूल डालने का नहीं, नारियल फोड़ने का नहीं। तप को बोले तो सब व्यसन से मुक्त होके भगवान की प्रार्थना करना, ये तप है। समाधान, समाधान, यही भगवान की स्थिति है। सब मुक्त, मुक्त होना, मुक्त होने का है। आदमी मुक्त होता, कैसा मुक्त होता इसके बारे में सोचा मैं। मुक्त मुक्त है। अब सादी बात का एक मेरे पास ऐसा है, मुक्ति मुक्त बोलते तो लोग ये मुक्त होने का मुक्ति है, मुक्ति मुक्त होना, भगवान के पास जाना, मुक्त होना। एक ऐसा मेरे जैसा एक बूढ़ा था, घर में बैठना, काम करना। मैं बोला दादा बस करना, बोला मैं। अब कुछ भी भगवान का नाम ले लो ना, बस कौन बच्चे करे, सब करे, भगवान सब दिया। नहीं नहीं बाबा बोले मुक्ति के बारे में नहीं। बाबा बोले तुम बोलते सही है, कोई कम नहीं, लेकिन एक मेरी बच्ची है, बच्ची की शादी हो गई, बस मैं मुक्त होगा। और देखो मैं बोला मुक्ति के बाद कितनी नजदीक है, हमेशा आप सुन रहे हैं। ये बच्ची की शादी हो गई, कहा मुक्त होते। देखो इसको क्या लंबा चौड़ा बना के आपको भटका दिए। अरे रोज बूढ़े लोग कोई भी बोलते नहीं बाबा होगा, अब 2 बच्चे हमारा शादी हो गए, हम इसमें से मुक्त होते। ये लगा दिया इधर, ये रोज हमेशा लोग बोल रहे, अपन सुन रहे, तो ऐसे बातें हो गई, गड़बड़ी हो गई। ठीक है, अपना इतना कोई बोलने वाला खुला नहीं मिला। भगवान ऐसा है, मैं अगर भगवान हूँ ये मुझे ज्ञान होगा। और भगवान की पहचाने तुम लोग मुझे बता दिए भगवान को, याद रखो। मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन तुम मेरे को भगवान का दर्शन दिए, ये मेरा विश्वास है। क्यों, कैसा मेरे को भगवान बता दिए। बाबा अच्छा है, आओ घर को लेके जाना, मोटो लगाना, पाँव पड़ना। ठीक है, करते 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 भगवान के बारे में क्या कि तुम मेरे को भगवान का रास्ता बताए, बोलने का बात क्या है, तुम मेरे गुरु है। ये इसका मतलब क्या होगा? ऐसा होते 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 कृष्ण भी इंसान था, तुकाराम बाबा इंसान था, विवेकानंद स्वामी, कृष्ण राम, टुकड़ू जी इंसान थे, ब्रह्मानंद फोटो है अभी नहीं। कि मैं अगर भगवान हूँ, मेरे को पहचानो था, तुम ही मेरे गुरु है। भगवान बताने के लिए अब तो बनाई, तो मुझे विश्वास आएगा मैं इंसान है, पहले भी इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ। मैं भगवान में बनाए तुम तो सब में भगवान है। भगवान नहीं है, इसी जगह नहीं खाली, दरी तरी काष्ठी पाषाण में भर गए, मूर्ति में है, पत्थर में है, लकड़ी में है, ये खाली है, ये पिंजरा खाली है। ये देखो चुकलियावर में फेरा पड़े, अपन रास्ता भूल गए। और भुलाने वाले कई लोग समर्थी
आपने आंखों में मट्टी फेंक दिए। अंधा नगरी चौपट राज कोई भी मारे दाद ना फिरिया। हमारा हिंदुस्तान के धर्म के बारे में ऐसा होगा, अंधा नगरी चौपट राज कोई भी मारे दाद ना फिरिया। तो इसका मतलब क्या होता? आपने निर्मल के पूरा गांव का गांव अंधा, एक ऐसा आया पट्टिया, दे हाथ तोड़, ये कर वो कर वो कर। थाना भी था नदी की, मार के चलेगा। अंधे को हाथ टूटा, पांव टूटा, लोली गई, क्या अंधे को मारे कौन मारा? गए क्या बाबा मेरा हाथ टूट गया, कौन मारा? क्या है कि मारा ये बात से वैसा हमारे धर्म में वैसा हो गया। अंधा नगरी चौपट रात कोई भी मारे दाद न फिरा। अब किसका नाम लेना? हाथ टूटा सही है, अरे मारा कौन? दिखा नहीं। ऐसे देखो हमारे धर्म की हाल हो गई। सब बरोबर है, श्रद्धा विश्वास है, लेकिन पूरा कई अड़ा टेढ़ा हो गया। भगवान के बारे में कोई सोचने की बात नहीं। ये पूरा स्वरूप एक ही है, विराट स्वरूप। विराट आत्मा को गिन सकते क्या? कुंटल आत्मा को गिन सकते? जरा तेर में भर के तो समझने का है। ये नरदेह अपना इंसान जन्म है, ये इतना श्रेष्ठ है। आप देखो, अब तुम्हारे सामने थे मामूली आदमी पूजा करने वाला, बकरे खाने वाला, ये कैसा होगा? अब कितना दूर है भगवान, सोचो। लेकिन अपने को मार्गदर्शन करने वाला महात्मा अब तक मिला नहीं। सब स्वार्थी है ये, निस्वार्थ भक्ति। अर्जुना तो युद्ध कर, लेकिन मैं कौरव मारूंगा, मैं राज्य करूंगा, मैं ये बाजू रख के तुम धनुष उठाओ, बोला मैं देख लेता। ये है भक्ति। पैसे के लिए, पेट भरने के लिए शिष्य मेरी पूजा करो, मैं तो भगवान हूँ, मेरा तीर्थ ले लो। अरे इसमें नहीं, ये आप मेरे ख्याल में है, मैं भगवान हूँ, तुम भी वही। यार मेरी कोशिश है, तुम्हारा तुम देखो। हर अनुभव आ रहा कई लोग को। अब तो करम बोला मंदिर के बारे में। विदर्भ, महाराष्ट्र, जिधर मैं गया, मद्रास में गया, वहां जी की चमत्कार है। मद्रास में, दिल्ली में, मुंबई में मैं हाथ बैठा। तो ये झूठ नहीं, किसकी बढ़ाई नहीं, लेकिन सत्य रास्ता मिला। बिल्कुल तुम करके देखो। इतने आदमी है ना यहाँ, ये मंदिर है ना, 1 महीना 2 महीने पूरे लोग कौन से भी समस्या है कहा कि बैठो तुम, क्या होता जिसका उसको देख लो। हाय बोल के मुझे भरोसा है, अंदर है। अरे भगवान क्या? आत्मा परमात्मा, अनेक नाम आ दिए, ब्रह्मा विष्णु शेष, सब एक कुछ नाम दिए सर। जगत जीवना, मराठी में जगत जीवना, यानी जग में कौन है? आत्मा है। लेकिन जगत जीवना बोले, मन मोहना बोले, लेकिन कौन है? ये कोई भी नहीं बोला आज तक। अंतर्यामी है, गुस्सा भी है, कपट भी है, मोह भी है, अंतर है, अंदर है भगवान नहीं। निराकार पांच तत्व की शक्ति है, 5 तत्व से शक्ति है, ज्योति स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है। अपना अपन ध्यान में बैठ सकते, देख सकते कई दिन के बाद। अब जितने मेरे जिंदगी उधर लोग है ना, ध्यान को बैठने वाले, साक्षात्कार हो रहा है। अब ये बोले तो भाषण करे ना, ऐसा कहा नहीं। अपना अपने को अपन पाहे अपन आशी, तुकाराम बाबा बोला कि अपन पाहे अपन आशी, यानी तुम्हारा तुम देखो। ये अंतर्मुख यानी बाह्य मुख, ये बाहर पूजा करना, ये बाहर के है, ये कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय अंदर है, ज्ञान इंद्रिय 5 है, 5 कर्म इंद्रिय है। ये बंद करके अंदर देखने का है। जब आपने को आत्मा का दर्शन होता है, वही सच्चिदानंद निज स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, सच्चिदानंद, कुछ भी नहीं,
आनंद ही आनंद समाधान। पाचवी मुद्रा लावणी लक्ष्य तो आत्मा प्रत्यक्ष हरिदेश हमारे हरिपाठ में मराठी में लिख के परा पचंती मध्यमा वैखरी शिव शक्ति। यहाँ हम बिठा दे वहाँ शंकर की मूर्ति, शंकर लगा दिए घंटे बजाते जाओ लाओ घी लाओ फलाना लाओ, शंकर को दिवा जलाओ घी का। ये शंकर बैठा फिर बाबू बादल लेके डालो इसमें, यहाँ धोखा है। कहाँ है शंकर? कैलाश त्रिवेणी संगम पाप नाशी गंगा, ये आगे शंकर जा रहा है। इससे तुम गए होंगे, गोदावरी होंगे, नर्मदा चले, काशी गए होंगे, क्या होगा बोलो? नहीं तो यहाँ बैठ के देखो तुम। अब एक रोगी लोग है ना, 1 महीना तक यहाँ बैठोगे ना, शाम सुबह पाप नाशी गंगा वेद में लिख के है। भीमाणी चंद्रभागा तुझा तेरा नाशी गंगा। ये भीमा आणि चंद्रभागा आणि सुषुम्ना सरस्वती तीनों का संगम है। यहाँ शिव का लिंग है। ध्यान करने से अपना नाड़ी शुद्ध होके रही रोग आणि मोक्ष पा सकते हैं। मुक्त यानी जैसा बच्चे के लिए मुक्त तो होने का था, लेकिन इंद्रिय से एक बार मुक्त होने का है जब इंसान का ही भगवान बनता। ये सत्य है। प्रपंच से मुक्त है और इंद्रिय से मुक्त होना लगता है। मेरे को फंसा दिए, मालूम होगा। अरे मेरा शत्रु तो मैं मेरे पास ही था, ये बताता वो अच्छा है वो बुरा है। अरे मैं दूसरे को दोष देने में क्या फायदा है? ये बताने वाले तुम्हारे शत्रु है, दुश्मन है, सजन भी है और दुश्मन भी है। तुमको गालियां दे रहा ये चपरासी ऊपर का किले पे बैठ खुशी को क्या बोलता? देखो तुमको गाला देना वो ऐसा कौन हो? चलो बहुत भक्ति ये है इंद्रिय, ये मुझे मालूम होगा। ये कर्म इंद्रिय बोलता अपना ये भार लगाने के लिए, करने के लिए। लेकिन उसको अपन पहचान के अब मैं क्या, मेरा अनुभव है इस समझने के बाद मित्र है शत्रु है। मैं देख बोला तो देखना, नहीं तो तुम मेरे को बोलेगा पहले का जैसा तो तेरी मेरी दुश्मनी हो जाएगी। देखो याद रखो, पहले जैसा तू मुझे बताएगा तो तेरा मेरा झगड़ा पूछेंगे। अंदर मैं देखो बोला तो देखे तो वो सही है? नहीं इसको बोला तो तुम मेरे को पूरा बर्बाद कर देंगे। गाली गलीटी बकरा मुर्गा सत्यानाश बना जिसको बोला। तू तो महान राकेश है बोला। ये मेरा मैं समझ लिया, कोई बोला नहीं मुझे। तू मेरी बड़ी शत्रु है मैं बोला, नागन है तू, एक दिन मेरे को फना करने वाली है। आप क्या इसको बोला? मैं दिए तो खाए, नहीं तो बेसो भी कोई परवाह नहीं है। ये अपने शत्रु है। तो नौकर ही जाओ, लेकिन लाओ कैसा भी करो, शाम को 1 किलो भर ताजा बकरा लाना। ये लाया वैसा करा वैसा भरना लगता। तो देखो ये ज्ञान है, वेद के बातें, वेद के बातें है। ये वेद में पढ़ो, पुराण में पढ़ो, यही गीता यही बोल रहे। हाँ अध्याय में ये बातें इंद्रिय काबू में ले लो। और सारा सोफा साधन है, मेरा अनुभव है। इतना गुस्सा, इतना खाने पीना, मैं कोई भी नहीं बोला कि छोड़ो बोल के, ये बेकार है बोल के, मेरे दिल से छोड़ा। और दुश्मन कौन है? मुझे दुश्मन नहीं है। मेरे दुश्मन को मैं बंदे में डाल दिया। अब मुझे अब दुश्मन मेरे सामने, दुश्मन के पीछे का मेरा गला कट्टा, मेरा विश्वास है। ये भगवान का अवतार है। इंसान सिद्ध है, बद्ध नहीं, जूते खाने वाला नहीं।
अरे इसके मुंह में मुतो रहे, अरे बच्चे को बोला मुतो उसके में। स्वर्ग नरक के बात करते हैं। अब यहाँ है स्वर्ग नरक, एक हाथ है, एक स्वर्ग का है, यह है नरक का है। सत्कर्म दुष्कर्म तुम शोधो। अब बुद्धि नहीं, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक। आप शाम को देखो कहाँ पंचायत बैठने मिल जाओ, तुम ही करते। कल बकराता बोलते हैं, और उसके मुंह में थूको रहे, और कोई बता गोबर डालो उसके मुंह में। यहाँ है ना मिल रहा ना, उधर क्या है, कौन देखा। स्वर्ग है नरक है, स्वर्ग है नरक है, जो देखा रहे गई। टुकड़े जी का किताब है, उन्हें क्या बोला, दैव दैव म्हणून कारणशी जाळीले गुऱ्हापुले। टुकड़े जी फोटो के ऊपर लिखा सो है बात, टुकड़े जी दैव 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 दोनों मनोनी कारण से जाळीले गुऱ्हापुले। इसका मतलब क्या है, अरे दैव दैव क्या लेके बैठे, तुम कर्म बेकार नहीं करेंगे तो दैव तुम्हारा क्या करेगा। तो ये मेरे पढ़ने से मुझे ख्याल में आया, दैव बोलते कर्म बोलते दैव बोलते। अरे इन्होंने क्यों बोला टुकड़े जी दैव दैव मृण कारण से जारीले गुढ़ा फूले। तो एकदम मेरे दिमाग में बैठा कि शराब पीने वाले है क्या करते, घर को रहते, दिन भर सो जाते, 4 बजे उठते, पैसे खोलते पेटी से, 100 रुपए 50 जितना लगता उतना लेके जाता। वो दूसरे गली में जाता, वहाँ रात के 10 बजे तक उधर ही पीते, बातें करते, करता। कहाँ लगा लेता, मारता, जोड़े खाता और थाने में जाता, ये पकड़ के। अब कल मीटिंग होती, पुलिस जो बोलते ऐसा वैसा कुछ बोलते, इधर बोलते, तुम्हारे मेरे जैसा दोस्त आता क्या बोले मारता, तो इतना होशियार है, तो कैसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे किस्मत में होगा, मेरा दैव में होगा। अरे दिन भर घर को रहा, हाथ से जाके वो पेटी खोला, जूता डाल के डिब्बे में गया, और बात बता यार उंगली रखता, हाथ से पैसे निकाला, मुंह से गाली गलती करा, पाँव से चलते गया वहाँ। दैव दैव मनोनी कारण से जाड़े गुरु आपने कितना सत्य बोलो, महात्मा के बातें क्या उंगली लगा, कितनी अपनी गलती है, मेरे किस्मत में होगा, मेरे दैव। अरे अरे हाथ बंद कर, मुंह बंद करना, देखेंगे किस्मत है। दैव भी है 4 आने, लेकिन 12-14 होने किस्मत से दुनिया अपने कर्म से मर रहे। 125 साल अभी भी कलयुग में, अभी आवश्यक है इंसान को 125 साल अभी ये जमाने में। और योग के बारे में ये तो जल्दी मिलने वाला है, ये आध्यात्मिक महात्मा अगर मिला तो। भगवान के बारे में तो सवाल ही मिला सो है, पहचानने का। ये ऐसी मृत्यु है। अब ये दारू, गुटखा, गंजीफा, शराब, रंडीबाजी, विशेष भोगवासना, ये मौत का कुआं है, याद रखो। जल्दी मरने की दवा है ये दवा, हम पैसे दे के खर्च करके मृत्यु को अपन काट रहे, याद रखो तुम। ये मेरा अनुभव है, मैं भी आज तक मरता था, मेरे सामने के बच्चे मर गए, मैं बच गया, निकल गया बोल के बोलने को मिला तुमको। अनुभव लेके है ये बात है, मेरे सामने के खिलाफ, मेरे सामने के। तो यही मेरे दिमाग में आया, ये भगवान की देन है, ये हो सकता नहीं, लिख के है, मेरे अनुभव में ले लिया इसका। और जो सुनेगा चलेगा, क्या किस्मत बोलते हैं। स्वर्ग नरक का हाथ है, तुम सबसे मिलकर रहो। भगवान का अवतार है, बने सो है, पहले भी अपन उसके मूर्ति बिठाए, उसके नाम से अपन पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई बोलने वाला नहीं कि तुम वो इंसान थे, तुम इंसान नहीं, क्या बोलने वाला आदत नहीं बोल रहा।
कई दिन क्या होगा कि फुलाजी बाबा राम का निंदा कर रहे, कृष्णा का निंदा कर रहे। 30 साल गए मेरे झगड़े में, आपस के दुश्मन, सरपंच पाटिल दुश्मन, पुजारी दुश्मन मेरे। अब भी खुला हो गया, जरा मुंह ज्यादा लोग खा रहे, इसलिए मेरे को मुंह खुल गया। अब किस्मत होंगी। अब 40 साल गए अपने आदिलाबाद जिले में, अब भी अभी थोड़ा महाराष्ट्र में विदर्भ 4 साल में पूरा फैल गए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पूरा महाराष्ट्र। 40 साल ही पटनापुर में था और पता नहीं कई लोग कौन का ऐसा, यह हमारा धर्म तुम्हारा धर्म, यह हमारा भगवान तुम्हारा भगवान, हमारा तुम चलने दो। मौका मिला तुम गए, सही भगवान की भक्ति करने का, भगवान होता है, लेकिन कर दो तुम जिसको ज्ञान नहीं, राम कृष्ण नहीं नाम ले, मेरा भी नाम लेने की जरूरत है। बाबा बोल रहे कहीं, अरे बोलने की जरूरत नहीं है, आत्मा है, अवय अखंड है, इसमें ख्याल ये थोड़ी में गिर काटा गिर गया, तो गिर गया, मर गया, ये खा इसके ऊपर मिलते रहने नहीं जाता। ये क्या आप पता में मुझे जन्म करुणा बंद ये मान जन्म पता था। पहला एक बार अंगार में चल गया था, जैसा था जब चले कि मैं चला, एक बार नाले गिर गया, ऐसा चले गया, ऊपर गिरा, मुंडी गई थी, ऐसा पहला होगा। आप हो मेरे को देखो, समझ चलो सकते आत्मा है तो क्या नहीं मालूम इसको, हम आपके पास नहीं तो अपनी हक भर आत्मा को करे, बोले भर के है, बाहर है, अनुभव करते आत्मा के दूसरा जन्म देख सकते, समझ सकते, उसका फायदे के लिए सकते, मुझे फायदा में बना क्या कोई पति के देश ढूंढ तो नहीं, हनुमान जैसे दो नहीं आता, इसलिए ढूंढने करने से चलो आत्मज्ञान की कोशिश के सिवा पूरा तुम्हारी समस्या कभी है, बैठे कभी करने नहीं जमा तो कुछ बोल नहीं तो हम के बताओ टाइम आए तो अपने आया मेहरबानी के बता बोले तो, लेकिन इंसान मान है उसके हो गए अपने औलाद के देख कभी कर काम करते, कई संकट मेरे चलते बचाओ संकट ये ध्यान करना शाही गजानन स्वामी और जितने अलग बैठे ध्यान को उतने रहा है, उतने गरम बाकी तो मंदिर जो बैठ पीढ़िया के हनुमान चले कुछ पता नहीं यार है हनुमान बात करा बात
आया, चले कोई उठने को आया, लकड़े सहित पटका देता बंदर को, पटका खड़ा हो गया, एक में नहीं उठा, दो हाथ हाथ लगा, उठा नहीं, जब ठीक होगा आसन डाल के बैठ ऐसा कर। आप देखो आपने पौधे उसने भी तत्व आपने मेरा कोई सवाल नहीं, सब में समान है। चाहे बात बोलता सब मालिक ये अक्षर में, लेकिन उसका उठाने का क्या उसका फायदा लेना, नारी शुद्ध हो। ये ज्ञान के देश क्या क्या चाहे मां जादूगर था, अभी कभी झगड़ा हो गया तो इसको पटका देता, चाहे बड़ी जला वो सो था, घास लेकर लगा दिया, मेरा मकान जिसको काम उसको मारने वाला है, जब अपना ही से, लेकिन अपने कर्म से पूरे लोग का ज्ञान अपमान का निंदा चुगली दाढ़ी महापाप खूब बड़ी होने वाली पार्टी